السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں باب معرفت المقطوع والموصول کے 2 اشعار تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج جو ہے تیسرا شعر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جو ہے تمہید قائم کیا تھا، وَعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي مُصْحَفِ الْإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى، کہ جو ہے رسم عثمانی کے اعتبار سے مصاحف عثمانیہ میں کلمات مقطوع اور موصول کو اور اسی طرح سے تائے تانیث کو جاننا ضروری ہے۔ تو انہوں نے پہلے کلمات مقطوع اور موصول کا بیان شروع کیا اور اس میں فرمایا تھا فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ اللَّا مَعَ مَلْجَأَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا، 10 کلمات میں ان کو لا سے جو ہے قطع کر کے لکھنے کا حکم دے رہے تھے، جن میں سے 2 کو کل کے سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ ایک جو ہے ملجأ کے ساتھ ہے اور ایک جو ہے بیان کیا تھا لا الہ الا کے ساتھ، یعنی اللہ الہ الا۔ آج فرما رہے ہیں وَتَعْبُدُوا یاسین ثانی ہود لا یشرکن تشرک یدخلن تعلو علا۔ اسی پہ عطف ہے، لہذا ترجمہ ہوگا اور قطع کرو ان لا کو، اور قطع کرو ان لا کو۔ میں نے آپ کو شروع میں بتلایا تھا کہ جہاں پر مقطوع ہوگا وہاں پہ تھوڑا سا سکتے کے ساتھ بولوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ جو ہے مقطوع ہے، ورنہ ادائیگی تو اللہ چاہے مقطوع ہو چاہے موصول ہو ایک ہی جیسی ہوگی۔ اسی طرح ہر جگہ صرف یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا جائے گا۔ بہرحال تو اور قطع کرو ان لا کو، اللہ تعبدو سورہ یاسین میں اور سورہ ہود کے دوسرے اللہ تعبدو میں، اور اللہ یشرکنا اللہ تشرک اللہ یدخلنہا اور اللہ تعلو علی میں۔ 10 مقامات میں سے 2 مقامات کو پہلے بیان کیا تھا، جن میں جو ہے ان کو لا سے قطع کر کے لکھا گیا ہے۔ اب اس شعر کے اندر جو ہے 6 بتلا رہے ہیں، اس طرح سے 8 ہو جائیں گے، اور اگلے چوتھے شعر کے اندر جو ہے 2 مقامات کو ذکر فرمائیں گے۔ تو اس شعر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان لا کے مقطوع ہونے کی 6 مواقع ذکر کیے ہیں۔ 2 تو پہلے آ چکے، اب جو ہے اس 10 میں سے 6 مقامات کون سے ہیں؟ تیسرا مقام، یعنی پہلے 2 کو لے کر کے تیسرا مقام ہے اللہ تعبد الشیطان، جو سورہ یاسین میں ہے آیت نمبر 60 میں، اور چوتھا ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا اللہ سورہ ہود کا ہے یہ، ثانی کہا ہے، ثانی ہود سورہ ہود کا دوسرا، اللہ تعبدوا الا اللہ اس میں جو ہے سورہ ہود کا کیا ہے، یہ دوسرا ہے۔ 5واں ہے اللہ یشرکن باللہ شیئا سورہ ممتحنہ میں۔ 6واں ہے اللہ تشرک بی شیئا سورہ حج میں۔ 7واں ہے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم سورہ نون یعنی سورہ قلم کے اندر۔ اور 8واں ہے اللہ تعلو علی اللہ
ये 8 मकामात हो गए, 2 पहले आ चुके हैं, अल्लाह मलजा और अल्लाह इलाहा इल्ला। अब जो है ये 6 मजीद बतलाए। अब यहाँ पर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान करते हुए हूद के साथ जो है सानी की कैद लगाई है। फरमा रहे हैं व तअबुदू यासीन, और यासीन में जो अल्लाह तअबुदु शैतान है उसको जो है आप मक्तू लिखो अनकोला से, और चौथा जो है अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह जो सूरह हूद का दूसरा है। तो यहां पर सूरह हूद के साथ जो है सानी की कैद का क्या फायदा है? सूरह हूद के साथ जो है सानी की कैद इसलिए लगाई गई है कि सूरह हूद की आयत नंबर 2 में अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह जो आया है उससे इख्तिराज मकसूद है, क्योंकि वो बइत्तिफाक़ मसाहिफ मौसूल ही है आयत नंबर 2 के अंदर। इसलिए जो है सानी की कैद लगाई कि पहला जो है निकल जावे। फिर उसके बाद देखिए आगे तालू के साथ अला की कैद लगाई। फरमा रहे हैं युशरिक न तुशरिक यदखुलन तालू अला। तो अला की कैद क्यों लगाई? इससे भी जो है एक कलमे का इख्तिराज मकसूद है, एक कलमे से इख्तिराज मकसूद है, और वो कलमा है सूरह नम्ल के अंदर अल्लाह तालू अलैया, उससे जो है असल में इख्तिराज मकसूद है। वरना अला अगर कैद ना लगाते तो अल्लाह तालू तक जो है दोनों कलिमात बराबर होते। तो यहां पर जो सूरह दुखान के अंदर है अल्लाह तालू अलल्लाह, यहां पर जो है अन ला से क्या है मक्तू है, अलग है। और जो सूरह नम्ल के अंदर है अल्लाह तालू उसके साथ जो अलैया है, तो इसलिए अला और अलैया के फर्क से ये जो है वाज़ेह हो जाएगा कि सूरह दुखान वाला जो है अल्लाह तालू अलल्लाह, इसमें जो है अन ला से अलग होगा, और सूरह नम्ल वाले में अल्लाह तालू अलैया जो है उसमें अन जो है मौसूल है बिल इत्तिफाक, इसलिए उससे इख्तिराज मकसूद है। तो गोया कि इस तीसरे शेर के अंदर 2 कलिमात को मुक़य्यद जिक्र किया है। हूद के साथ जो है सानी की कैद से पहले कलमे को निकालना मकसूद है, और दूसरे मिसरे के अंदर जो है तालु अला से जो है अलैया वाले कलमात जो सूरह अलैया वाला कलमा जो सूरह नम्ल में वाक़ है आयत नंबर 31 के अंदर, उससे इख्तिराज मकसूद है, क्योंकि ये बिल इत्तिफाक मौसूल है। यहां पर एक बात आप जहन में रखें, यहां जो अन ला कहा जाता है, अन ला, इससे मुराद जो है अन से मुराद वही अन होगा जो हमजा के फतहे और नून की तखफीफ के साथ है, और इस्म और फेल दोनों पर आता है, न कि महज अन नासिबा मसदरिया जैसा कि बाज लोग कहते हैं। यानी अन नासिबा मसदरिया भी है, लेकिन जो है सिर्फ अन नासिबा मसदरिया नहीं है। तफसील ये है कि अन जो है, जो इसमें 10 कलिमात के अंदर जो अन आ रहा है, तो अन कहीं पर नासिबा मसदरिया है, कहीं पर जो है मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला है, और कहीं पर तफसीरिया है। और इसी तरह से ला जो आया है हर एक के बाद अन ला में जो ला आया है वो ला जो है कहीं पर नाफिया है और कहीं पर नाहिया है। ये खास बात याद रखने की, वरना बाद लोगों ने सिर्फ जो है अन मसदरिया कह दिया है, अन नासिबा मसदरिया, लेकिन उनका यह कहना सही नहीं है, क्योंकि अन तीनों तरह का आया है। कहीं अन जो है नासिबा मसदरिया आया है, तो कहीं पर जो है अन मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला है, और कहीं पर अन जो है तफसीरिया है। इसी तरह से ला जो है कहीं पर नाफिया है और कहीं पर नाहिया है। बहरहाल अब यहां पर जो है मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने कितने कलमात जिक्र किए थे? 6 कलिमात। 6 कलिमात में से एक जो है सूरह यासीन में, दूसरा जो है सूरह हूद में, और वो भी सूरह हूद के अंदर 2 कलिमात इस तरह के हैं अल्लाह ताबुदू के साथ, लेकिन पहली जगह जो है अल्लाह ताबुदू में जो है मौसूल है, और सानी की कैद लगा करके पहले को निकाल दिया है।
इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कलिमा इसमें जिक्र किया दूसरे मिस्र में, अल्लाह युशरिकना जो सूरह मुमतहना में है, और अल्लाह तुशरिक जो सूरह हज में है, और अल्लाह यदखुलन्नहा जो सूरह कलम में है, और अल्लाह तालू अलल्लाह जो सूरह दुखान में है। इस तरह से ये 6 कलिमात मुकम्मल हुए, और दो पहले तो 8 हो गए, अब रहे 2, उसको आगे फरमा रहे हैं, अल्लाह यकूलू ला अकूल इम्मा बिर्रअद वल मफ्तूह सिल व अम्मा। उसी पे अत्फ़ है, लिहाजा तर्जुमा होगा और कता करो अल्लाह को, अल्लाह यकूलू और अल्लाह अकूला में, और इम्मा को सूरह राद में, और मफ्तूहुल हम्ज़ यानी अम्मा को मौसूल लिखो, और अम्मा को यहां पे नाकिस तर्जुमा है, अगले शेर में उसका तर्जुमा पूरा किया जाएगा, और अम्मा को। इस शेर के अंदर मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने अव्वलन तो अन-ला जिसका बयान चल रहा है उसके 9वें और 10वें मकाम की तायीन की है, फिर उसके बाद जो इम्मा यानी इन मा, और इसी तरह से अम्मा, अम्मा यहां पर जो है अन के साथ जो है मफ्तू वल मफ्तू हसिल जो कहा है, वहां पर मुराद अन मा नहीं है बल्कि अम्मा, मीम और मीम है। और गरचे यहां पर जो है मफ्तू हसिल कहने की वजह से बहुत से लोगों को धोखा हुआ है, उसकी तफसील जब आएगी तो आपको बतलाएंगे। और इसी तरह से अम्मा अन हर्फ जार, और उसके बाद जो है मा है, इसका बयान यानी इसमें जो है 4 कलिमात का बयान हुआ। एक जो है अन ला के 2 मकामात, इम्मा के मकामात, और अम्मा के मकामात, और अम्मा के मकामात, इस तरह से 4 कलिमात के। तो बहरहाल अब जो है 8 कलिमात जो है अन ला वाले आ चुके हैं। 9वां कलिमा है अल्लाह यकूलू अलल्लाह इल्लल हक जो सूरह आराफ की 129 नंबर की आयत में है, और 10वां है अल्लाह अकूल अलल्लाह इल्लल हक, ये भी सूरह आराफ में 105 नंबर की आयत में। बहरहाल अल्लाह यकूलू ला अकूल, अल्लाह यकूलू ला अकूल तक अन ला मक्तू के 10 कलिमात का बयान खत्म हो गया। आपको बतलाया गया था कि अन ला जो है 11 मकामात पर है। 11वां मौका जो है सूरह अंबिया का है, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत, जो मुख्तलफ फी है लेकिन राजिह कताई है, और वस्ल जो है उसमें सही है। और यहां पर जो मुसन्निफ ने 10 कलिमात की कैद लगाई थी वो बिल इत्तेफाक वाली थी, इसलिए जो है सूरह अंबिया वाले को शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल इन 11 के अलावा बाकी मकामात में कुरान करीम के अंदर अल्लाह मौसूल है, मसलन अल्लाह यरजिअ इलैहिम, अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा, अल्लाह तअलू अलैया, अल्लाह तअबुदू इल्लल्लाह वगैरह, जो सूरह हूद में आयत नंबर 2 में है। बहरहाल यहां जो है 10 मकामात जिक्र किए गए। अब जो है कता के जो 10 मकामात हैं उन पर अन और ला चूंकि अलग अलग है, लिहाजा वक्फे इस्तिरारी अन पर जायज और सही होगा, और बाकी मौके में जहां पर मौसूल है वहां पर जायज नहीं होगा। रहा वक्फे इख्तियारी तो वो कहीं भी सही नहीं है, चाहे अन जो है मक्तूआ हो चाहे मौसूला हो। अब यहां एक बात यह आती है कि अन को ला से कता और वस्ल यानी मक्तू और मौसूल लिखने की क्या वजह, उसमें हिकमत क्या है? तो जवाब उसका ये होगा कि कता तो इसलिए कि अन और ला ये 2 अलग अलग कलमे हैं, जिसका तकाजा है
कि क़ता इख्तियार किया जाए, और वस्ल इसलिए किया जाता है कि वहां पर नून का लाम में जो है इदगाम हो जाता है, गोया कि नून जो है तलफ़्फ़ुज़ से हस्ब हो जाता है, तो रस्म में भी मुवाफ़क़त इदगाम की वजह से हस्ब कर दिया जाता है। गोया कि वस्ल की सूरत में तलफ़्फ़ुज़ की और क़ता की सूरत में अस्ल की जो है रियायत की जाती है। जी, दूसरा कलमा था इन्मा, इन्मा बिर्रादी, इम्मा बिर्राद। मतलब यह है कि सूरह राद की आयत नंबर 40 में जो आया है वह इम्मा नुरियन्नक बअज़ल्लज़ी नइदुहुम, इसमें जो है इन्मा बइत्तिफ़ाक़ मसाहिफ मक़तू है, यानी फ़क़्ता पे जो है इसका अत्फ़ हो रहा है, फ़क़्ता उसी के ज़िम्न में आ रहा है इन्मा, लिहाजा इनको माँ से क़ता करके लिखा जाएगा, लेकिन कहाँ पर? सूरह राद में। और रात की कैद से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इस एक जगह के मा सिवा कुरान करीम में हर जगह इम्मा मौसूल है। मसलन सूरह अनफाल में देख लीजिए इम्मा तखाफन, इसी तरह सूरह यूनुस में है व इम्मा नुरियन्नक, इसी तरह सूरह मरियम में देख लीजिए फ इम्मा तरयिन वगैरह ज़ालिक। तो अब यहां पर भी आप समझ लीजिए कि सूरह रात के इन पर वक्फ इस्तिरारी जायज होगा और दीगर जगहों में नहीं होगा, और वक्फ इख्तियारी कहीं भी नहीं सही होगा। अब यहां एक बात है कि इन्मा से क्या मुराद है, तो ये बात आप ज़हन में रखिए कि इस लफ्ज में इन जो है शर्तिया है और मा ज़ायदा होता है बराए ताकीद। तो ये बात ज़हन में रहे कि इम्मा हरफ शर्त इन और मा ज़ायदा का मजमुआ होता है, जिसका माना होता है अगर, और कहीं पर ये हरफ अत्फ बमाना या होता है। कुरान करीम में दोनों का वक़ू है, यानी तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से इम्मा दो तरह से है, एक जो है इन और मा ज़ायदा का मजमुआ या इन शर्तिया और मा ज़ायदा का मजमुआ, और एक जो अगर के माने में होता है, और एक इम्मा होता है बमाना या, यानी हरफ अत्फ के माने में हरफ अत्फ होता है, और कुरान करीम में दोनों का वक़ू है। यहां जो मसला बयान किया जा रहा है वो सिर्फ जो है अव्वल का है, यानी इन और मा से जब मुरक्कब हो तो उसके मक्तू और मौसूल होने की गुंजाइश है, जैसा कि सूरह रात के अंदर मक्तू है, दीगर जगहों पर मैंने मिसालें आपके सामने पेश की, वहां पर मौसूल है। लेकिन दूसरे में यह गुंजाइश नहीं है जो हरफ अत्फ के माने में। क्यों ऐसा है? उसकी वजह यह है कि जो हरफ अत्फ होता है इम्मा, वो मुरक्कब ही नहीं है, वो मुस्तकिल एक ही हर्फ होता है, और मक्तू और मौसूल वहां हो, मसला वहां आएगा जहां पर कोई मुरक्कब हो, कि उसको मिला करके लिखा जाए या अलग लिखा जाए। ऊपर जितनी मिसालें आपको पेश की गई हैं, चाहे वो मक्तू की हो चाहे मौसूल की, वो सब जो है इम्मा शर्तिया की हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मौजूद बहस जो है वही इम्मा है जो शर्तिया और जो है क्या नाम है मा ज़ायदा से क्या कहते हैं मुरक्कब होता है। अब यहाँ पर एक मसला ये आप कह सकते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि शर्तिया कौन है और आतिफा कौन है। तो अगर आप आलिम हैं माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक उसूल बताते हैं जिसकी वजह से इन शर्तिया, इम्मा शर्तिया और इम्मा आतिफा का पता चल जाएगा। उसका आसान तरीका यह है कि जिस इम्मा के बाद फा आए,
जिस इम्मा के बाद फा आए तो वो शर्तिया होगा, और अगर इम्मा के बाद इम्मा या औ आए तो वो आतिफा होगा। मसलन फ़इम्मा तरयिन्न मिनल बशरि अहदन फ़क़ूली, इसमें शर्तिया है, फा आया। और फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअ इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, इसमें जो है इम्मा आतिफा है। तीनों मिसालें एक एक दे दी। यानी इम्मा के बाद अगर फा आए तो वो इम्मा शर्तिया है, जैसे फ़क़ूली सूरह मरियम के अंदर। और अगर जो है इम्मा के बाद इम्मा आए या इम्मा के बाद औ आए तो वो जो है इम्मा आतिफा होगा। चुनांचे पहली मिसाल जो मैंने दी, फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअ, यहाँ पर इम्मा आतिफा है। इसी तरह से औ आए, इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, तो यहाँ पर औ आया। लिहाजा इन दोनों मिसालों में इम्मा जो है आतिफा है। आगे एक नई बहस है, वल मफ्तूह सिल व अम्मा। लिहाजा इसी पे आज का सबक खत्म किया जाता है। वल मफ्तूह सिल से अगला सबक इंशाअल्लाह, अगला सबक जो है वहाँ से होगा और उसमें जो उसकी तफसील आएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।